या अच्छा, दिलीप जी आ गए। हेलो मोना। हेलो निधि। गुड इवनिंग। नमस्ते। हेलो शारदा। गुड इवनिंग मैम। हेलो रेहाना। हेलो आभा। Deepa ji, you're looking very pretty. थैंक यू सो मच आशीष, यू ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट मी, थैंक यू। So how was your day? I mean, I enjoyed that birthday video of your daughter's. It was lovely. Oh, that She's was so really magical. so cute. She is so pretty. And ना कितना चेहरे पे खुशी थी उसको जो सरप्राइज मिला। सरप्राइज ठीक से डिलीवर हो जाए ना टाइमिंग के साथ तो एकदम मैजिकल हो जाता है और Right. that happened actually that day. Oh, that was really good. Very nice. Very well unplanned actually. Manifestation power. Absolutely. Positivity. Great. Thank you. नमस्ते दीपा जी। Hello Pihu, how are you? Yeah. Hi, I'm good. How are you? I'm good. Namaste, I wanted to ask you something. Yes, please. What kind of a dance form are you into? I'm into Bharatanatyam and Kathak. Okay. वो जो आपने मॉर्निंग रिचुअल वो जो किया था that was I guess that was सूर्य नमस्कार. हाँ, वो वाला सूर्य नमस्कार था। कल जो मैंने किया था वो भरतनाट्यम रिलेटेड था। Awesome. आप रोज करते हो? हाँ मेरा हाँ ऑफ कोर्स, जो मेरा एग्जाम का जो नॉट एग्जाम सॉरी प्रोग्राम का जो है वो मैं रोज सुबह उठते ही वो रिवीजन के जैसे आई जस्ट डू इट वंस। Very You beautiful. give performance also? You are Yeah, into I have. performance? Yeah, I have my performance in the month of October. I think you would have heard about Ranga Pravesha, Arangetram. It's also called as Arangetram. Yes, I've heard. Yeah, once you are done with basic education of Bharatanatyam, senior level, then you are eligible to do that program. So in the month of October, I have that program. Wow. आप कहाँ से हैं पीयू जी? Sorry? आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ। अच्छा, ओके। So Pihu, who inspires you for this, for dancing? वैसे तो मुझे डांसिंग पहले से ही बहुत पसंद था, but once I started watching all this Bharatanatyam videos and all, and even my few of my friends who are into dancing and all, so I just got inspired by one of my friend called Pooja. Yeah, so after that I just started learning and पहले मैं सोचती थी कि I can't dance, but now I feel that dance is within me. So Wow. yeah, I'm just doing it. It's kind of a ease for me and आराम से हो जाता है। और मैं जब भी डांस करती हूँ I feel so happy and joyful. So already following your bliss, huh? थैंक यू Yeah, थैंक यू exactly. पीयू जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और ये पैशन और जुनून है और बहुत ब्यूटीफुली इसको वो फॉलो करते हैं और आगे इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसमें। Thank you. थैंक यू पीयू। माफी चाहती हूँ मैं। I'll be resuming the class in another 15 minutes. Okay. Okay, and I'll just switch off the video. I'll listen to the lesson carefully, whatever it is. So I'll get back to you. थैंक यू। Thank you. Thank you so much. यस दीपा जी आप Everybody. start कीजिए। Yeah, I'm waiting for Dilip ji. Actually, he's joining and he said that I'm waiting. Dilip ji is not there. She is my mom logging from cell phone. So photo was Dilip ji. तो वो कर रहे नहीं दिलीप जी। अच्छा, ओके। he said he is joining ना, तो वो कुछ म्यूजिक लगाने वाले। ओके आपको म्यूजिक चाहिए? ओके ओके जस्ट अ सेकंड। या तो उनको बताया है वो लगाने वाले हैं, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। और anybody would like to share any experience of this till the time being? यस आई के चैप्टर से रिलेटेड जिन जिन लोगों ने अपने होमवर्क किए ना, असाइनमेंट जिन्होंने कंप्लीट किया, प्लीज वो शेयर कीजिएगा।
या प्लीज असाइनमेंट के बारे में कुछ बताइए, या फिर कुछ आप ध्यान अगर कोई करता है तो उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए अलका। हाँ जी, मैं कलकत्ता से हूँ। मेरा एक शेयरिंग है कि कल जैसे कहा गया था कि आप होमवर्क कीजिएगा, आप किसी को विजुअलाइज करिएगा, आपको किससे इंस्पिरेशन मिला है। तो मैं अपनी सासू माँ के साथ में मैंने विजुअलाइज की उनको। वो हमेशा मुझे बोलती थी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, सबको बहुत अच्छा लगता था। तो अभी 3-4 साल से मैं अपनी बहू के साथ में खाना बनाती हूँ, मैंने हम लोग डिलीवरी करते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है खाना। तो उनसे उसी से इंस्पायर होके मैंने हम कर रहे हैं अभी। वेरी बहुत नाइस। बहुत तरह की डिशेस बनाते हैं हम लोग, ओके। सबको बहुत अच्छा लगता है। और प्यार से बना, वो बोलते हैं ना गोल्डन डस्ट हो प्यार का, तो हर एक हाँ। चीज में स्वाद का निखार आ जाता है। इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, सभी तरह का ही बनाते हैं। मेरी बहू को भी बहुत अच्छा आता है बनाना, तो हम लोग मिलके बनाते हैं। मैंने उसे कहा था कि हम लोग कुछ करते हैं, खाली बैठ के क्या करेंगे। अभी 2-3 हाँ। साल से कर रहे हैं, अच्छा ही चल रहा है। तो थैंक यू। दिलीप जी आ गए हैं शायद, हाँ दिलीप जी आ गए हैं जो हाँ मेडिटेशन दीपा जी, जस्ट 1 minute विल प्ले। ओके ओके ओके। तो आप अपना खाने का जो काम है, ये सब जो आप सीख रहे हो ना, उसमें ग्रेटिट्यूड डालिए, अच्छा। मैजिक डस्ट डालिए, तो उससे हाँ आपका खाने का और बोलते हैं ना, जो क्लाइंट्स है वो और चाहेंगे कि वाह ये स्वाद तो बड़ा अलग और निराला है। हाँ हाँ, ये बात सही है। ओके दीपा जी, विल कंटिन्यू थैंक म्यूजिक। यू। हाँ यू कैन नॉट नाउ, मैं जैसे बोलती हूँ ना, हाँ 2 मिनट स्टार्ट कर दीजिए, इट्स ओके। ओके फाइन। मैं वॉल्यूम देखती हूँ कितना है और फिर स्टार्ट करती हूँ। हाँ अभी अनम्यूट हो गई हूँ मैं, लिसनिंग टू द थोड़ा वॉल्यूम कम किया। ओके ठीक है। ऑडियंस में से कोई बोल सकता है कि म्यूजिक ठीक है या जोर से आ रही है? आशीष कैन यू टेल मी? लिया आप बता सकते हो? थोड़ा वॉल्यूम और कम कीजिए, थोड़ा वॉल्यूम कम। That's it? Yeah, thank you so much. Okay, so we'll start the meditation now. और अब बहुत ध्यान से करेंगे सब लोग प्लीज अपना अपना बोलते हैं ना, जो भी विचार वगैरह आ रहा है और घर के काम जो है आपके 10 मिनट के लिए थोड़ा शांति से करिए, बैठिए, रिलैक्स कीजिए और देखिए आज कितना आपको अच्छा लगेगा ये मेडिटेशन करके। अपने आप को प्लीज रिलैक्स कर लीजिए, ध्यान से कंफर्टेबल बैठिए, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठिए। अपने आप को बैक जो स्पाइन है उसे बिल्कुल सीधा रखिए। हाँ स्पाइन को सीधा रखिए, आप बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और हाथ जो है ना, ये ऐसे हाथ है आपके, देखो 2 मिनट के लिए आंखें खोल के देखिए, ये हाथ को ऐसे रखना है, रिसीव, जैसे आपको कोई दे रहा है तो आप कैसे लोगे वैसे वो हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है? वैसे हाथ अपने थाइस पे रखिए। हाँ आंखें बंद कर लीजिए अभी, आंखें बंद करके अपने माथे को देखिए, फॉरहेड को देखिए अच्छे से, ध्यान से वहीं पर नजर रखिए, बीच पे जो आंखों के बीच में जो जगह होती है वहां पर देखते हुए हम डीप ब्रीदिंग करेंगे और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस बोलूंगी उसको आप फॉलो कीजिए। बाय चांस आपका ध्यान इधर उधर हो भी गया तो कोई बात नहीं, वापस से ब्रीदिंग पे ध्यान ले आइए अपना। लेट्स स्टार्ट। चश्मा नीचे रख सकते हैं आप और स्टार्ट कीजिए। इनहेल,
एक्सेल, मुस्कुराते हुए इनहेल, होल्ड, एक्सेल। जैसे इनहेल करोगे आप समझिए कि आपके अंदर पूरी खुशी आ रही है, और एक्सेल करते टाइम जितना भी स्ट्रेस है वो बदन से बाहर जा रहा है। इनहेल, रिलीज, स्किन के पोर से सब जगह से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एवरीवेयर, रिलीज स्ट्रेस। इनहेल, रिलीज। अब आपका ध्यान, आप ये इमेजिन करिए कि आप एक रूम में जा रहे हो और वहां रूम में एक दरवाजा है, वो दरवाजे पे हैंडल लगा हुआ है। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए वो हैंडल को देखते हुए उसको खोलिए, और जैसे आप खोलते हो रूम का दरवाजा तो वहां पर एक चेयर है और रूम में पूरी वाइट कलर की लाइट है। वो पूरी सफेद लाइट जो है वो भगवान की ब्लेसिंग्स है। वो ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी हैं कि जैसे आपके ऊपर पड़ेगी, जहां जहां वो वाइट लाइट जाएगी, आपका वहां से स्ट्रेस निकल के वहां पर शांति आपको महसूस हो। तो आप जाके वो कुर्सी पे बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ के अपने सांस पे ही ध्यान दीजिए, और ध्यान देते हुए इमेजिन करिए कि वो लाइट आपके सर से धीरे धीरे पूरा आपको हर एक कण में, हर एक शरीर के पार्ट में समा रही है। धीरे धीरे आपके आंखों पे, नोज पे, गालों पे, लिप्स पे, जॉज, जॉज से नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, पाम, हथेली पे, हथेलियों से उंगलियों पे पूरी जगह वाइट लाइट समा रही है। छाती पे, पेट पे, आपकी पूरी स्पाइन, हर एक स्पाइन के पार्ट पे से धीरे धीरे वो वाइट लाइट अंदर जा रही है, आपके हिप्स पे से गुजरते हुए थाइस, नीज, नीज से वो वाइट लाइट जा रही है पूरा उधर घुमा के आपके काफ्स, टोज और पैरों की जो उंगलियां हैं वहां पर से वो वाइट लाइट धरती पे जा रही है। साथ में आपका पूरा स्ट्रेस निकाल के और हर जगह ब्लेसिंग्स और खुशी और शांति भर रही है। और वैसे ही आपको एकदम बिल्कुल हल्का और सुकूनमय महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आपके पैरों की उंगलियों को हम हर एक पार्ट को थैंक यू बोलेंगे। टोज, थैंक यू सो मच, आई लव यू। हील्स, थैंक यू, आई लव यू। काफ्स, थैंक यू, आई लव यू। नीज, आपके घुटनों को थैंक यू, आई लव यू। थाइस, hips, thank you, I love you. Stomach, chest, thank you, I love you. Spine, shoulders, thank you, I love you. हाथों की उंगलियां, हथेली और कलाई, thank you, I love you. Elbows, arms, thank you, I love you. Neck or jaws, thank you, I love you. Kan, lips, tongue, teeth, thank you, I love you. Cheeks, nose, eyes, माथा आपका, forehead, thank you, I love you. My hair, my brain,
थैंक यू, आई लव यू। आपके अंदर जो भी ऑर्गन्स है, किडनी, लंग्स, लिवर, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। Thank you so much. Thank you for being with me, for working for me. Thank you. धीरे धीरे अपनी जो अवेयरनेस है वापस से अपने नाक पर ले आइए, नॉस्ट्रिल्स के यहाँ पर। हम इनहेल करेंगे, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। इनहेल करते हुए हम ये इमेजिन करेंगे वो वापस से पूरी जो वाइट लाइट है आपके पूरे बदन में अभी तक है, संभाले हुए आपको शांति का, सुकून का महसूस हर पल कराता रहेगा कि आपके अंदर ब्लेसिंग है, शांति है। उसको महसूस करते हुए इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। आंखें बंद रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रहने दीजिए। लास्ट टाइम, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। जैसे आपका मन करेगा थोड़ा सा धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली आंखें खोलिए और हाथ जोड़ के अपने आप को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। हाँ, कैसे लग रहा है आपको? आई होप आप लोग ने मेडिटेशन एंजॉय किया हो। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको मेडिटेशन कैसे लगा है। आपको अच्छा लगा है तो मैं रिपीट करूंगी, या फिर जो सा अच्छा लगा है वो वाला कराऊंगी, ठीक है? सो लिया, आई थिंक वी आर ऑल रेडी टू इनवाइट यू एंड हियर फ्रॉम यू। सब लोग को इंतजार है आपका। हम सब लिया को क्लैप करके बुलाएंगे, तभी वो आएंगी एंड लेक्चर हमारे लिए सेशन शुरू करेंगे। लेट्स इनवाइट लिया विद अ क्लैप। Clap, 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 clap. Smile, 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 smile. Clap, clap, clap. लिया, आप आ गए हो? Yes, I'm. Okay, welcome लिया, welcome लिया. Thanks a lot. Thank you, thank you, thank you all of you. Thank you, Deepa ji. Okay, so amazing energy, amazing meditation और बहुत कुछ। नाउ आज का हमारा डे बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमारा डे 13 है, 1 + 3 13। तो 3 नंबर मैंने बोला ना कि एक नए क्रिएशन का नंबर होता है। हमारी जर्नी के एक बहुत बड़े पड़ाव को हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं, और कल ही मैंने कहा था कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने नियर डियर जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हो प्लीज करिएगा। आज डे 1 पे इस हमारी पूरी की पूरी क्लास का पर्पस कि आपके सपने कंप्लीट हो, आपके ड्रीम और डिजायर कंप्लीट हो बहुत ज्यादा स्पीड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके भी मुझे दिखना चाहिए आज की क्लास में आपका कंसंट्रेशन बहुत सीरियसली, और आज बहुत सीरियस क्लास जाने वाली है। थोड़ा मस्ती मजाक होगा लेकिन लास्ट में, ओके? सो पहले आप सभी के वीडियो ऑन कर लीजिए, मेरे को देखना है कि आज क्लास में कौन कौन है, और स्टार्ट होने के बाद ही हमारा आगे का स्टार्ट होगा सेशन। आपको अपना एक बुक और पेन भी आज अपने साथ में लेके बैठना है, नहीं है तो 1 मिनट में आप कलेक्ट कर लीजिए अपने पास में फटाफट। और एक और मैसेज मैंने ग्रुप में डाला था कि येलो पेपर और रेड पेन लेके आपको बैठना है, तो जिन जिन लोगों ने लिया तो वो साथ में रखिए। वाओ आशीष जी, सुपर्ब, थैंक यू। अलका जी थैंक यू, राजेश्री जी थैंक यू, विवेक जी थैंक्स अ लॉट, सुपर्ब। तो ये होती है सिंसियरिटी, ये होती है एक अच्छे स्टूडेंट की और एक सरेंडर और कमिटेड स्टूडेंट की पहचान, ओके? सो अर्चना जी का वीडियो ऑन नहीं है, पीहू जी यू आर नॉट विजिबल, पूजा जी, कविता जी,
और दूसरी स्क्रीन पे तो कोई विजिबल ही नहीं है। ममता जी, सुधा जी, गुंजन जी, पूजा जी, रचना जी, सोन कंवर जी, रिंकू, यशवी, राधा, गीता, बबली, शुभम, विजय जी, अभी, बबीता, एकता। हो सकता है आपकी वजह से क्लास आज हाफ एन आवर लेट खत्म हो। ओके, सो ऑन योर वीडियो एवरीवन, very compulsory for today only. Thank you Mamta ji, thank you Yasmin ji, Abhi ji, thank you. I'm waiting. बबीता जी, राधा जी, शुभम जी, ज्योति जी, नीति जी, फास्ट फास्ट हमारा टाइम जा रहा है। ओके, थैंक यू। तो जिन जिन लोगों ने भी वीडियो कहने के बाद ऑन कर लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मोना जी, आप को होस्ट हो, क्वेश्चन पे आज बहुत ध्यान दीजिएगा कि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें उन्हें प्रॉपरली आंसर करना है, तो आप क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा जी। ओके। तो आज की हमारे ड्रीम लिस्ट है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलो, जिसके लिए हम इस क्लास में अपना इतना टाइम कमिटमेंट दिया है और सब कुछ हमने दिया है। अपनी जिंदगी में खुद के लिए कुछ स्टेप लिए हैं और खुद के लिए कुछ करने का सोचा है। आने के बाद भी अगर हम नहीं सीख पाए तो ये बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, ब्रेकडाउन जैसा होगा। स्टूडेंट वो तो डेफिनेटली आपसे अपर लेवल में अपग्रेड हो जाएंगे, हम लोग वहीं के वहीं सेम क्लास में रहेंगे। तो ये दोनों भी चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। और आप लोग सभी बच्चे नहीं हो कि मुझे बार बार समझाना पड़े, बेटा ऐसे करो, प्लीज बच्चा ऐसे करो, पेन ऐसे पकड़ो। यू ऑल आर मैच्योर्ड पीपल। ओके ओके। तो सपने क्या होते हैं? सपने क्यों देखते हैं हम लोग सपने, और उन्हें पूरा करना क्यों जरूरी होता है? आज इस कॉल पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अलका जी है, ममता जी हैं, विजय जी हैं और सरोज आंटी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने, जब आपका लाइफ स्टार्ट हुआ तो कुछ ड्रीम्स आपके रहे होंगे ना कि हम लोग ये करेंगे, मेरा हॉबी ये है। कुछ तो आपका ऐसा पैशन रहा होगा, जुनून रहा होगा, जो हो सकता है मे भी पूरा हुआ हो, लेकिन अगर नहीं पूरा हुआ हो तो उसकी कसक और चुभन आज भी हमें होती है कि यार जिंदगी ऐसे ही गई, हमने कुछ किया नहीं। होता है कि नहीं? यस नो? यस। तो वो ब्लिस, हमारे वो सपने हमारे लास्ट तक हमारे साथ चलते हैं, और जब हम उन्हें कंप्लीट नहीं करते ना तो एक हमारा सिद्धांत आता है कर्मा का कि हमको बार बार उनके लिए कई बार जन्म भी लेना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज, वो रुकावट हमें रोके रखती है इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। और वो जो दिल की सच्ची खुशी होती है ना, धड़कता है दिल, वो जुनून, वो हैप्पीनेस, वो कहीं ना कहीं अटक के रह जाती है जब हमारे सपने पूरे नहीं होते। तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आकर्षण का नियम और ये जादुई दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों को सबसे आसान तरीके से कैसे पूरा करे, इसके लिए बहुत सहायता करती है। ये यूनिवर्स हमारे माता पिता की तरह है, बस हमें इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही फॉर्मूले से मांगना आना चाहिए। ओके। इसके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ नियम है, उनको अप्लाई करना बहुत 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 कंपल्सरी है। उसके बगैर अगर हम, एक लॉक है हमारे पास जो हमारी खुशियों की चाबी है, और एक ताला है जिसको खोलने से पूरा हमारी खुशियों का वो लॉक अनलॉक हो जाता है, लेकिन उसके लिए सही चाबी उसमें डाल के घुमाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास चाबी रॉन्ग हुई तो क्या आप वो डोर, वो दरवाजा, वो लॉक अनलॉक कर सकते हो? नहीं।
तो राइट फॉर्मूलाज राइट वे में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आज हम बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हम आप लोगों को बताएंगे कि हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी बुक पेन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आता है हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आकर्षण के कानून का उपयोग कैसे करें अपनी जिंदगी में। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव बाय योर एक्शन। जिंदगी में पूछो, विश्वास करो, प्राप्त करो और उसको करने के लिए एक्शन लो या कार्यवाही करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉट इट? क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे। अनम्यूट करना है आपको। हाँ जी, आप पूछ सकते हो। हाँ राजेश्वरी जी, मे आई रिपीट? हाँ यस। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव, रिसीव बाय एक्शन। हिंदी वालों के लिए आकर्षण का नियम है पूछो, विश्वास करो, प्राप्त करो और उसके बाद उस पे कार्यवाही करो और एक्शन। फाइन, नोट डाउन हुआ? ओके। सेकंड है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। आवर बॉडी वाइब्रेशन इज अ लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। हमारी बॉडी में कंपन होता है, तरंगें निकलती है। जब हम बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं ना, तो कुछ अलग तरह की वाइब्स होती है, और जब हम बहुत सारा गुस्सा करते हैं तो पूरा बॉडी एकदम रेड हो जाता है, एकदम आंखें लाल, हमारी पूरी बॉडी में एक आग जैसी जल जाती है। तो दैट कॉल फ्रीक्वेंसी, तरंगे, कंपन। और यूनिवर्स उस भाषा को बहुत अच्छे से समझता है, वो उसी चीज को कैप्चर करता है कि आपकी बॉडी से किस तरह की वाइब्स निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपन का नियम क्या है? हमारा शरीर कंपन करता है, और जिस तरीके से कंपन करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ब्रह्मांड को वो भाषा सुनाई देती है। ओके। थर्ड है हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 5% हमारा कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, हमको सही गलत अच्छा बुरा सब। वो कैसा होता है, एक बिल्डिंग में जब हम जाते हैं ना, तो चपरासी रहता है ना सामने, बिल्डिंग का वॉचमैन, वो वॉचमैन के जैसा है। किसी भी अननोन चीज को वो बिल्डिंग में एंटर नहीं होने देता। अगर वो उसे जानता नहीं है, उसे कुछ ठीक नहीं लगता, या उसे कुछ बराबर नहीं जमता है कि हाँ भाई कहीं कुछ ये हार्म करेगा, तो वो उसे अंदर एंटर नहीं करने देता। पर डे हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 60,000 थॉट्स। उसमें से बहुत सारे नेसेसरी होते हैं और बहुत ज्यादा अननेसेसरी। तो अगर सबको उस वॉचमैन ने अंदर एंटर करके अप्लाई करने दिया तो क्या होगा? तो वो वॉचमैन की तरह हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो वर्क करता है 95% ज्यादा। कॉन्शियस माइंड से हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% ज्यादा वर्क करता है। तो हमारा पूरा बचपन से लेके आज दिन तक हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, जीबी, सब कुछ उसके पास स्टोर रहता है। आप बोलते हैं ना किन किन लोगों की याददाश्त इतनी तेज होती है, एक झटके में फट फट वो लोग आंसर देते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। कई लोग बोलते हैं ना पास्ट थेरेपी और ये सभी हिप्नोटिज्म, तो वो क्या लोग करते हैं, वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपको क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ऑफ हमको नहीं पता, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा का सारा मेमोरी स्टोर रहता है, और वो 95% ज्यादा पावरफुल है। जो हमारे साधु संत लोग जो बड़ी बड़े तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड धीरे 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 एक्टिवेट हो जाता है, और जितना ज्यादा एक्टिवेट होता है वो पूरी लेयर खुलती चली जाती है, और धीरे धीरे वो यूनिवर्स के साथ उनका सीधा तालमेल होता है, डायरेक्ट कनेक्शन।
इसीलिए वो लोग आपको बैठ के आपका पूरा डिटेल स्कैनिंग कर सकते हैं, आपसे मिले बगैर आपसे बात कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि लोग, कोई साधु महात्मा इतने बड़े बड़े पहुंचे हुए होते हैं, हमारे मन की बात जान लेते हैं, हमको हर चीज का आंसर देते हैं हमारी लाइफ में। तो वो कैसे देते हैं? बिकॉज ऑफ उन्होंने इतनी ज्यादा उस चीज के लिए प्रैक्टिस और साधना करी है और उन्होंने उसको बहुत हद तक एक्टिवेट किया है। सो ये बहुत साइंटिफिकली भी ट्रू है, जिन भी बड़े लोगों के साथ ये रिसर्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। तो चेतन मन हमारा निर्णय लेता है सारी चीजों के लिए, और अवचेतन मन हमारा 95% डाटा बैंक है, जो सारी की सारी चीजों को स्टोर करके, मेमोरी को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। समझ में आ रहा है सबको परफेक्टली? ज्यादा फास्ट या स्लो अगर हो तो आप मेरे को बोल सकते हो यस नो। ओके, मैं स्लो ही जाऊंगी बिकॉज ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज, थोड़ा बेस बनाना। फाइन, कंटिन्यू। ओके, सो हमारा उसके बाद है साइंस ऑफ ब्लेम, कंप्लेन का। तो इफ यू आर प्रैक्टिस ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, यू विल बी बिकम गुड इन कंप्लेनिंग, बिकम अ प्रोफेशनल। बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा ना कि कई लोग ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं जो कंटिन्यूस कंप्लेन करते जाते हैं। एक चीज जब हम बार बार करते हैं ना, तो उसमें धीरे धीरे हमारी मास्टरी हो जाती है। हाँ ना, किचन में एक बार हमने रोटी बनाई, स्टार्टिंग में हमसे गोल नहीं बनती, फिर धीरे धीरे मम्मा की डांट, उनकी डांट, सासू मॉम की डांट, हमको कैसे मस्त गोल रोटी बनाने के लिए मतलब हो जाता है ना। तो कैसे होता है? वाया प्रैक्टिस। धीरे धीरे जब हम एक ही चीज में ज्यादा फोकस और प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज परफेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से कंप्लेन भी, अगर आप बहुत बार नेगेटिव जोन में रह रहे हो, हमेशा ज्यादा गुस्से में रह रहे हो, इस तरह की चीजें में ज्यादा रह रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल अगर आपके साथ ऐसे हैं जो हर बार इसी तरह की नेगेटिव बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपका सर्कल, आप उसमें मास्टर बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब। और बाद में हम बोलेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। ओके, तो जो कुछ भी हमारी लाइफ में हम करते हैं, करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम हैं। आज इस बात को लिख लो पेपर पे कि कुछ भी हमारी लाइफ में आज दिन तक जो हुआ है, किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। और आज से अगर हम कुछ चीजें बदलते हैं तो वो चीजें भी हमारी ही ओर से बदलेंगी, ना कि कोई और। गॉट इट? ओके, इस क्लास जो जिसने फर्स्ट टाइम करा, उसने बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के 4-5 दिन में। मैम मेरे साथ इसने ऐसा किया, मैम मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्या करूं, मैम मेरी तो कोई गलती नहीं थी लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बट जब आप उसके पीछे का रीजन ढूंढने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो रीजन मिलेगा, जब आप एक्सेप्ट करोगे इस ट्रुथ को कि जो भी होता है हमारी ही वजह से होता है। और इस क्लास में आज 13 डेज की जर्नी में क्या हमने आपके हस्बैंड को बदला? क्या हमने आपके सर्कल को बदला? क्या हमने आपकी सिचुएशन को बदला? लेकिन फिर भी आप खुशी महसूस कर रहे हो, फिर भी आप हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो, एक अलग तरह का जॉय महसूस कर रहे हो, एक खुशी महसूस कर रहे हो, उस मैजिक को महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नजर बदली, आपने अपना नजरिया बदला, आपने अपना सोचने का तरीका बदला। और जैसी हमारी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। अगर आंखों पे ब्लैक कलर का चश्मा लगाया ना, तो हमको पूरी दुनिया ब्लैक 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 दिखाई देगी। अगर ग्रीन कलर का चश्मा, तो सारी दुनिया ग्रीन। तो हम अपनी जजमेंट के उस चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं कि अरे देखो सामने वाला तो रेड कलर में दिख रहा है, लेकिन भैया चश्मा तो उतारो तभी पता चलेगा। तो किसी को भी जज ना करे, चाहे वो आपका पति हो, आपकी सासू माँ हो, आपके ससुर जी हो या आपके बच्चे हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, एक ह्यूमन है। Am I right? Say yes, no. आप जवाब देते जाइएगा ताकि मुझे पता चले।
हाँ, अनम्यूट नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ डिस्टरबेंस, मुझे नहीं चाहिए, बट राइट यस नो आप लोग बोल सकते हो. सो साइंस ऑफ एंगर, गुस्से का विज्ञान. तो जैसे ही आप गुस्सा करते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी में एक तरह का बहुत बैड वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है. पूरी बॉडी में एक तरह का नेगेटिव केमिकल रिलीज होता है, और जो इतने टाइम का जो पॉजिटिव होता है ना, वो उसको इमीडिएट बहुत तेजी से बर्न करता है. एक गुस्से के बाद आप देखना कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो पूरा आपका एनर्जी को वो सक कर लेती है. पूरी आपकी एनर्जी कहीं वेस्ट हो जाती है. आपको लगता है एकदम गुस्सा आने के बाद ढीले ढाले हो जाते हैं, हम थक के बिस्तर पे पड़ जाते कि अरे यार इतना गुस्सा किया क्यों मैंने. और फिर बाद में जब सोचते अरे इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी, पकड़ के मैंने उसको इतना बड़ा कर दिया. अफसोस होता है उस चीज के लिए. गुस्सा आता है फिर खुद पे कि गुस्सा क्यों किया. यस नो होता है ना बहुत बार हमारे साथ. तो गुस्सा ऑलवेज हमको जलाता है. हम लोग सोचते हैं कि हम गुस्सा किसी और के लिए कर रहे हैं, और पे तो जाते जाते जाएगा. सबसे पहले हमको खुद उसमें जलना पड़ेगा. तो आज भी गुस्से के लिए ऑलवेज आपके पास 2 चॉइस रहेगी, यस या नो. चॉइस अपने लिए एक्शन आज आपको लेना है कि क्या करना है आज के बाद. तो ये आपके सपनों की दुनिया में एंटर होने की कुछ रूल्स और फॉर्मूलाज है जो आपको अप्लाई करना है, तभी वो लॉक अनलॉक होगा. उसके बाद है लॉ ऑफ जेनरे और जेलेसी. किसी के लिए अगर हम जलन करते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल पीहू जी ने, वाओ क्या मस्त ड्रेस पहना है आज, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है. अरे यार मैं तो ऐसा पता नहीं दिख ही नहीं सकती. ठीक है, निधि जी का ड्रेस ग्रीन कलर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, मेरे पास तो ऐसा ग्रीन कलर का ड्रेस ही नहीं है. ये क्या किया हमने, जेलेसी. तो इस तरह से हम हमारी मनचाही चीजों के लिए अगर थोड़ी सी भी जेलेसी करते हैं तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, तरंगे जनरेट करते हैं, एमवे की. और वो जैसे ही बाहर जाती है हमारे सपनों की वो चीज जो हम चाहते हैं. मतलब अगर मैंने पीहू जी की तारीफ की तो मुझे कुछ अच्छा लगा इसीलिए, लेकिन बाद में वापस क्या ऐड किया, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, उनसे जलन की. तो मेरी मनचाही चीज को मैं खुद ही खुद से दूर कर रही हूँ जलन करके. तो अगर आप अपने नियर डियर अपने फ्रेंड्स के पास कोई ऐसी चीज देखें, अपने आसपास कोई ऐसी चीज देखें जो आपको चाहिए, तो आपको उसे भी बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है. किस तरीके से कि देखो वाह पीहू का ड्रेस कितना मस्त लग रहा है, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, भगवान उसको ऐसे और 10-15 ड्रेस लाके दे. किसी के पास BMW है तो उसको देख के ऐसा नहीं अरे ये तो इसके पास है, इसके पापा के पास बहुत पैसा है, ये वो, ऐसा कुछ हमको नहीं बोलना है. हमको उसको बोलना है कि भगवान अभी उसके पास BMW है, मर्सिडीज में घूमे. तो आप अपने सपनों की उस चीज को अच्छा एनर्जी देके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. ये नियम बहुत जरूरी है. ओके, लॉ ऑफ फोकस. अभी आप किन चीजों पे फोकस करते हो और किस तरीके से फोकस करते हो, ये भी बहुत जरूरी है. आप चाहते हो अपना मन चाहा और फोकस करते हो अनचाहे पर, जाने अनजाने, तो क्या आपको वो मिल पाएगा. जैसे आप लोगों ने मॉर्निंग के पिक्चर देखे, उन पिक्चरों में मैंने जो डिटेलिंग की, अगर नॉर्मली होता ना तो कोई भी से पिक्चर देखता, हाँ भेज दिया ओके हो गया. लेकिन उसको डिटेल में किसने क्या कलर पहना है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, सन कितना बड़ा शेप का है, कौन से कलर उस सीनरी में दिख रहे हैं, कहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है. डिटेलिंग फोकस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के लिए. और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि पर्टिकुलर आप कहाँ पे और कौन सी जगह फोकस करते हो. अगर आपको कोई एक चीज चाहिए आपकी ड्रीम में बहुत प्रायोरिटी के साथ, ओके, तो आपको अपना कंप्लीट फोकस, अपना कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी उससे देना है. ऐसा नहीं कि आप 10 जगह पे जाके इधर भी गड्ढा खोदो, उधर भी गड्ढा खोदो, उधर भी गड्ढा खोदो, तो एक में से भी पानी नहीं आएगा. तो कंप्लीटली अगर कोई चीज आपको चाहिए तो उस पे ही पूरा का पूरा फोकस कीजिए.
ताकि आपकी पूरी एनर्जी वहां पे लगे और रिजल्ट बहुत जल्दी आए। गॉट इट? ओके, सो लॉ ऑफ चॉइस, लॉ ऑफ चॉइस है हर सक्सेसफुल इंसान के सामने या हर बड़े इंसान के सामने ऑलवेज चॉइसेस रहती है कि नहीं, उसमें से अच्छे बनने के लिए उसने कुछ चीजें अपने लिए चुना है, अपने कंफर्ट जोन को जरूर छोड़ा है। बैठे बिठाए बिस्तर पे हमको क्या सारी चीजें मिल जाती है? ये यूनिवर्स हमारा माता पिता है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो जब रोता है ना तभी माँ को पता चलता है कि उसको भूख लगी है, तो वो उसको लेके हाथ में उसको सहलाती है, उसको दूध पिलाती है। तो यूनिवर्स भी हमारे माता पिता की तरह है, लेकिन हमें सही तरीके से उनसे मांगना आना चाहिए, तभी हमें वो अपने सपनों की चीजें दे पाएंगे। उन्होंने तो ये जीवन सिर्फ आनंद और खुशी के लिए ही बनाया है, हमने उसमें इतना मैस, इतनी सारी नेगेटिविटी और ये सब क्रिएट करा है जो हमें हमारे सपनों की दुनिया को प्राप्त करने से रोकते हैं। तो आज हमें चॉइस करना है कि क्या करना है हमें आगे, और उसके लिए आस्क बिलीव रिसीव का फॉर्मूला, उसके बाद 4th नंबर पे है एक्शन, अप्लाई एक्शन। किसी ने डिसाइड किया मुझे कल सुबह जल्दी उठ के अपना मस्त वेट लॉस करना है 10 kg, सोच लिया हाँ करना है, नहीं होगा। उठो, अपने लिए रूटीन बनाओ, मैनेजमेंट बनाओ, टाइम सेट करो, वॉकिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्शन अप्लाई करने के बाद यूनिवर्स आपको फुल ऑन सपोर्ट करेगा आपके सपनों की वो लाइफ को और जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी पूरा करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन एक्शन आपको लेना बहुत कंपलसरी है। मैं क्लियर? ओके, आ रहा है ना सबको समझ में? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? आप हाँ बोल सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है। सो परिवर्तन का विज्ञान मतलब कैसा है कि दुनिया को हम जिस तरह, जिस नजरिए से, जजमेंट से देखते हैं ना, तो जैसे ही हम हमारे जजमेंट या हमारा वो चश्मा क्लियर कर देते हैं तो दुनिया हमें एग्जैक्ट वैसी दिखती है जैसी आज हमें दिखाई दे रही है और महसूस हो रही है। सो ये सारे लॉ आप लोगों को अप्लाई करना है अपने ड्रीम लिस्ट में। क्लियर? सबने नोट डाउन किया और सबको समझ में भी आ गया? आगे बढ़े? ओके, सो हम लोगों ने आज रेड पेन और येलो पेपर मांगा था, बिकॉज ऑफ उसका रीजन मैं समझा देती हूँ, बाकी बाद में हम लोग सिर्फ पिक्चर शेयर करेंगे आपके साथ। रेड कलर एनर्जी का सिंबल है, रेड कलर शगुन का सिंबल है, रेड कलर सौभाग्य का सिंबल है। सुहागन हमेशा लाल कलर का तिलक, चंदन, हमारे आप धर्म संस्कृति में देखोगे तो रेड कलर की मौली, कुमकुम, चावल, पूजा, हल्दी, हर चीज आपको रेड और येलो कलर में दिखाई देगी। माता महालक्ष्मी कौन से कलर के ड्रेसेस पहनती है? रेड एंड येलो। ओके, रीजन क्यों पता है किसी को? अगर कभी चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड जो निकलता है ना, वो ब्लड भी रेड कलर का होता है। उसको देख के क्या फील होता है? ओ माय गॉड, रेड कलर एकदम वाइब्रेंट। ट्रैफिक की सारी जो लाइटें भी रहती है रेड एंड येलो कलर में रहती है, पता है? बिकॉज ऑफ ये कलर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हाईलाइट कलर है। तो जब हम हमारे सपनों को लिखते हैं ना, तो इन दो कलर में लिखने से बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे से हाईलाइट होते हैं, सीधे के सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं वो चीजें। वो पिक्चर जैसे ही हम देखते हैं वो सीधा हमारे यहाँ पे अंकित हो जाता है, हमको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये सारे के सारे रिचुअल इसी तरीके से परंपराएं बनी हुई है, लेकिन हाँ अभी जाते जाते हमें इसका नॉलेज ही नहीं है और उनके पीछे का रीजन और साइंस हम लोग बहुत, हमारी आजकल की ऐसी स्टडी भी नहीं है कि हमको ये सारी चीजों से अवगत कराए। लेकिन मुझे बहुत प्राउड है हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय पद्धति और हमारी सनातन धर्मा पे। पूरे भारत के हर एक ईच एंड एवरी प्लेस पे आप
आप चले जाओ, हर जगह आपको रिचुअल मिलेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे वैसा होता है। हम रसगुल्ला भी खाते हैं तो कुछ अलग मेथड से खाते हैं, कहीं कहीं बनाते हैं तो कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। तो सबके पीछे आप इस आज के बाद अगर आप कभी भी है ना कहीं भी जाओ ना, तो उसके पीछे का रीजन जरूर ढूंढिएगा। इससे आपका बहुत मतलब नॉलेज बढ़ेगा और पता चलेगा कि हर रिचुअल के पीछे, आपकी दादी नानी को भी आप पूछ सकते हो कि आपने ऐसा बोला तो इसके पीछे का रीजन क्या है, वो हमको समझाओ। तो ये धीरे धीरे बहुत अच्छा डिस्कवरी होगा और आपका माइंड बहुत शार्प बनेगा चीजों को पकड़ने के लिए जादुई तरीके से। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, तो हमको उसमें लिखना है, लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे। सो ड्रीम लिस्ट को आप लोगों ने जिन ने भी बनाया है अभी प्रायोरिटीज मोटा मोटा लिख लिया है, लेकिन आज आप लोगों को उनको 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि चैप्टर 1 में बताया था, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको प्रायोरिटीज को चूज करना। 6 अलग कैटेगरीज में आपको लिखना है। ओके, 6 कैटेगरीज है। जैसे एडवेंचर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, फाइनेंस है, हेल्थ है, उसके बाद फैमिली परिवार है, फाइनेंशियल हेल्थ, कैरियर है, बिजनेस है। इस तरह 5-6 कैटेगरीज है, मैं आपको शेयर कर दूंगी किस तरीके की, उनमें करके फिर अपने ड्रीम लिस्ट लिखना है। और आज ड्रीम लिस्ट सबको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। पहले आपने लिखा था ना, मांगा था फर्स्ट दिन कि यूनिवर्स हमको ये चाहिए, यूनिवर्स हमको ये चाहिए। आज आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आपको ऑलरेडी वो चीज मिल गई है और उसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हो और धन्यवाद करोगे। रीजन एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। यूनिवर्स हमारे माता पिता की तरह, मैंने कई बार बोला, मैंने बोला मम्मी मेरे को है ना एक कार चाहिए। ओके, मम्मी बोलेगी कार चाहिए, कौन सी चाहिए? फिर वो कार कौन सी चाहिए आपको मेजरेबल होना चाहिए, टेंडेबल होना चाहिए, क्या कितना लिमिट माप तोल पूरा परफेक्ट होना चाहिए आपकी ड्रीम लिस्ट में। कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए? ऑडी कार चाहिए। ऑडी कार चाहिए, ऑडी का कौन सा मॉडल चाहिए? Q3 मॉडल चाहिए। Q3 मॉडल चाहिए, Q3 मॉडल का कलर कौन सा चाहिए? रेड कलर चाहिए। रेड कलर चाहिए, फ्रंट पार्ट ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो इस तरह की पूरी डिटेलिंग आपको अपने सपनों के लिए करनी है, जो आप चाहते हो, जैसा हस्बैंड चाहते हो, जैसे उसके साथ रिलेशन चाहते हो, बच्चे चाहते हो, परिवार चाहते हो, फैमिली में बॉन्डिंग चाहते हो, कैरियर चाहते हो, नौकरी चाहते हो। तो हर चीज की डिटेलिंग बहुत 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 जरूरी है। गॉट इट? ओके, सो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबके लिए? मोना जी? हाँ जी, क्लियर? एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू। सो ये सारे बेसिक्स है, रूल्स है जो हमने आज बताया आप लोगों को। अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों के क्वेश्चन भी लेंगे। और जिनके भी क्वेश्चन है प्लीज आज नोट डाउन करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी कोई क्वेश्चन रह रहा है। और ड्रीम लिस्ट लिखना भी बहुत, अगर अब तक किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज आज लिख लीजिएगा। ओके, हाँ जी। तो कौन रीडर आज, कौन रीड करना चाहेगा? मंजू जी आप हो? मंजू जी इज नॉट देयर। एनीवन एल्स? I believe Vivek ji was there. ओके, विवेक जी आप हैं यहाँ? हाँ विवेक जी है, मैं अनम्यूट कर लूंगी उनको। बबीता जी ने हैंड राइज किया है, विवेक जी तो है ही है। I can raise her. ओके, Or even Ashish ji can also read. यस ही कैन। स्क्रीन दिखाई दे रहा है?
Book is not visible, Lilia ji. Now it's visible? Yeah. Okay. Okay, मोना जी किन्होंने हैंडल किया है? I'll just check. 2 जनों का है, एक बबीता जी का है और एक सोन कंवर जी का है. ओके, बबीता जी आप अनम्यूट कीजिए, रीड कीजिए, अगर प्रॉपर रहा तो आप कीजिएगा. ओके, हाँ अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, आप अनम्यूट. यस मैम. ओके, थोड़ा लाउडली रीड करना है और हर पैराग्राफ के बाद आपको पॉज देना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए. या मैम. ओके, Sure. आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. ओके मैम. 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें. कैसे आज हमने सीखा कि किस तरीके से और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है. आपकी सोच, कैसी सोच, हम कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन हर चीज की शुरुआत सोच से होती है. कि आपके मन में फर्स्ट थॉट जैसे आता है ना, थॉट आने के बाद धीरे 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 वो चीज सच्चाई में बदलती है. आज दिन तक की जितनी भी बड़ी खोजें इस दुनिया में हुई है ना, वो किसी ना किसी की कल्पना और किसी ना किसी की सोच का नतीजा है. किसी ने इन्वेंट किया कि मेरे को लाइट बल्ब बनाना है, किसी ने इन्वेंट किया मेरे को रेलगाड़ी बनानी है, किसी ने इन्वेंट किया मेरे को अंतरिक्ष में जाना है, किसी ने सोचा मुझे घर बनाना है, किसी ने सोचा मुझे कपड़े बनाना है. तो आज हम भौतिक जगत में जितनी भी चीजें देखते हैं वो किसी ना किसी की कल्पना और सोच का परिणाम है. और हर वो चीज सच हो सकती है जो आप सोच सकते हैं. तो यूनिवर्स के पास भरपूर है, इतना ज्यादा असीम शक्ति और पावर है कि वो हर चीज को हकीकत में तब्दील कर सकती है, बशर्ते आप उस पे अपना पूरा का पूरा भरोसा करें. और जितना ज्यादा भरोसा करोगे चीजें हकीकत में उतनी ज्यादा तेजी से बदलेंगी. तो कल्पना एक सच्चा जादुई गलीचा है, एक कारपेट है, आपको सिर्फ इस पे भरोसा करना है. हाँ जी बबीता जी. नॉर्मन विसेंट पीन 1898 to 1993 लेखक. यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता और अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है. लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं. तो सदियों से हर पैराग्राफ के बाद आपको पॉज देना है. यदि हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, एवरीडे इस बुक के हर चैप्टर का, जैसे कि ये जादुई किताब आपको बताती जाती है. आज मैं और एक बार कर दूं कि लता मैम कुछ भी नहीं है, मेरी औकात कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं. इवन मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ. हमारे ये ग्रुप की प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है ताकि आप लोगों के साथ हमको भी कुछ अच्छी लर्निंग मिले. तो जो कुछ भी है ये बुक है, जैसा बोला इसने वैसे हम लोगों ने किया तो हमारी लाइफ में मैजिक पॉज हुए. और आपको भी ये बुक ही गाइड कर रही है, हम सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. और एक मैजिकल ग्रुप इसीलिए ताकि इस चीज को और ज्यादा अच्छी फैमिली और ज्यादा वाइब्स पॉजिटिव मिले. तो उसके लिए जैसा ये बुक बोलती है वैसा आपको लगातार करते जाना है.
और हर दिन का जादुई अभ्यास जो आप कर रहे हैं ना, तो आपको अपने जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल और अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद इन 13 दिनों में आपने अपनी बिल्डिंग की वो नींव खड़ी कर ली है, जिसपे अभी आपकी इच्छाएं, अपने सपनों की वो धीरे धीरे 1 by 1, 2, 3 फ्लोर बनते जाएंगे और बहुत मजबूत नींव आपने डाल दी है। जिसने भी अपने होमवर्क असाइनमेंट किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने। Got it? तो आज का दिन एक बहुत रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं। हाँ जी। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का स्तर प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कमांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीजें पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो जो करेक्शन हमने आज करवाया ना कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, हर मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। सदियों से, मतलब ये आज से नहीं है, हजारों हजारों सदियों से आदिकालीन संस्कृतियां अपनी हर मनचाही चीज पाने से पहले हर तरह से जश्न मनाती है। हमारे में पता है, बारिश आने से पहले उसके लिए पूजा करते हैं, घर बनाने से पहले उसके लिए कुछ पूजा करते हैं। तो हर धर्म में, हर संस्कृति में, ना सिर्फ इंडिया में, हर तरह के कबीलों में ये चीज है कि हर वो पाने से पहले उनको जो भी है ना, उसके लिए वो प्रे करते हैं, जिस भी भगवान को वो लोग मानते हैं। तो प्राचीन समय से मिस्र के लोग ले लो, अमेरिकन इंडियंस ले लो, ऑस्ट्रेलियन के मूल बाशिंदे ले लो, अफ्रीकी प्रजातियां ले लो, हर एक लोग हर चीज करने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड और रिचुअल करती है, ताकि, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है। सिर्फ तरीका, भाषा, लैंग्वेज अलग रहते हैं, लेकिन सबका इंटेंशन सेम है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसे मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने से सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है और अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के ओके। तो आकर्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने नोटिस किया है, हम 10 लोगों के ग्रुप में बैठते हैं, लेकिन उनमें से सबसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता।
किसी ऐसे 2 या 3 बंदों के साथ जिनके साथ हमारी थॉट मिलती है, जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं, कहीं ना कहीं जिनके साथ हमारी कभी कभी एज भी मिलती है। तो बच्चों को बच्चों के साथ, भाभीियों को भाभीियों के साथ, सासू मां को सासुओं के साथ, ऐसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कुछ अगर जेलेसी पीपल हो तो उनको हर वक्त बुराइयां करने वाले लोग अच्छे लगेंगे, गॉसिप करने वाले लोग अच्छे लगेंगे, और कुछ बहुत धार्मिक है तो उनको ऑलवेज धार्मिक लोग अच्छे लगेंगे, और वैसे ही लोग उन्हें मिलेंगे। और कोई बहुत नेगेटिव है तो उनको तो पूरी दुनिया नेगेटिव ही नजर आएगी। कोई चोर है तो उसको सारे के सारे चोर ही नजर आते हैं। तो इस तरीके से आप जो समान ही समान को आकर्षित करता है, इसका मतलब कि आप जो चाहते हैं अपने मन में उसी तरह के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर आप उसे अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। मतलब मेरी ख्वाहिश अगर ऑडी की थी तो मुझे हर रोज ये कल्पना करनी है कि वो मुझे मिल चुकी है। रेड कलर की ऑडी में मैं मस्त अपने बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। उस टाइम आपकी बॉडी से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी, वो तरंगे सीधे जाके यूनिवर्स तक पहुंचेगी। और जैसे ही पहुंचेगी वो भगवान बोलेगा, वो यूनिवर्स, आपके माता पिता बोलेंगे, अरे मैंने इसे अभी दिया ही नहीं और ऑलरेडी ये इतना खुश है, पहले से इतना शुक्रगुजार है। फटाफट फटाफट इसने क्या ऑर्डर किया था, चलो फास्ट पहले इस बच्चे को दो, क्योंकि ये पहले से इतना शुक्रगुजार है। और एक बच्चा जो हर वक्त मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये क्यों नहीं दिया, मम्मा मेरे को 2 चॉकलेट लाना था, आपने वो क्यों नहीं लाए, मेरे को तो अगर आपने कैडबरी लाया तो वो बोलेगा मेरे को डेयरी मिल्क चाहिए, डेयरी मिल्क लाया तो बोलेगा किटकैट चाहिए। तो क्या आप भी कोई ऐसे बच्चे हो, या जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ हो? तो ये सृष्टि का लॉ है, नियम है। आज आप चेक करना कि आप किस तरह के बच्चे हो, और अगर करेक्शन कर लेना कहीं 19-20 है तो। ओके, क्लियर? ओके, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के ये शब्द यही वादा करते हैं। कौन सी है वो जादुई शक्ति? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल शक्ति जिसके द्वारा आप जो चाहे वो पा सकते हो, और सबसे आसान है ये चीज, है कि नहीं? यस मैम। क्यों? शुक्राना, धन्यवाद, दयालुता, कृतज्ञता, कितना आसान तरीका है। करो नहीं करो तो मर्जी आपकी। हाँ जी, आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे वक्त करने से काम नहीं चलेगा। आपको स्क्रीन में देख के पढ़ना है बबीता जी। हाँ, यस मैम। बाद में इसे वक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। तो कृतज्ञ, अगर आपको कोई चीज मिल रही है और आपके ड्रीम पूरे हो गए और उसके बाद में आप सिर्फ ऊपर ऊपर से थैंक यू बोलो तो वो नहीं चलेगा। आपको चीजें मिलने से पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और मिलने के बाद भी। अधिकतर लोग अच्छी चीजों को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अगर अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को, ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, अगर आपको समृद्ध और खुशहाल बनाना है तो समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको दोनों भी तरह से पहले और बाद में कृतज्ञ होना है। थैंक यू बबीता जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। अब हम रीडर चेंज करेंगे। आशीष जी या विवेक जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। आप कर पा रहे हैं?
विवेक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। विवेक जी, थैंक यू लता जी। आगे आप रीड कीजिए। जब आप अपनी मनचाही चीज से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो जब भी आप अपनी मनचाही चीज को पाने से पहले सचमुच दिल से, गहराइयों से डीपली कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह पिक्चर बन जाती है कि वे चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आप महसूस करते हो कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देंगे और अपनी मनचाही वस्तु को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि आपको वो कैसे मिलेगी, लेकिन हाउ में हमको नहीं जाना है, सिर्फ अलाउ करना है उस यूनिवर्स को अपना काम करने के लिए। जैसे ही आपने हाउ डाला वहीं पे वो यूनिवर्स स्टॉप कर देगा कि इसको तो भरोसा ही नहीं है, क्यों दूं मैं इसे। वेरी इंपॉर्टेंट। नो हाउ, ओनली अलाउ। तो आपको कैसे मिलेगी यह पता लगाना आपका काम नहीं है। आपको तो बस यह पता होना चाहिए कि ये शक्ति काम करेगी ही करेगी ही करेगी। 101% गारंटी। पैदल चलते वक्त आप रोड पे चलते हो तो आपको पता है ना कि आप इधर उधर गिरोगे नहीं, राइट लेफ्ट में सीधा ही चलते हैं हम। ऐसा होता है कि चलते चलते कभी हवा में उड़ जाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक ग्रेविटी का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो इस पृथ्वी पे सारी चीजों को स्टेबल बनाए रखती है। अगर आप टेरिस पे गए और वहां से अगर आपने कोई बॉल नीचे फेंकी तो वो बॉल उड़ के ऊपर चली जाएगी? नहीं, वो सीधी की सीधी नीचे ही गिरेगी ना। यस। ओके, तो किसी को अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी पे थोड़ा भी डाउट है ना तो आज अपने टेरिस पे जाके एक बार जंप करना, देखना आप नीचे जाओगे। 100% गारंटी नीचे ही जाओगे, और वहां से कहाँ जाओगे आई डोंट नो। प्लीज इट्स जस्ट जोक करके मत देखना। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है, जो आप मानो या ना मानो ये काम करता ही करता है। और इसी तरीके से आपको विश्वास करना है, इसी तरीके से आपको विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का, यही ब्रह्मांड का, यही यूनिवर्स का नियम है। मानो या ना मानो, लेकिन ये नियम समान रूप से हर इंसान, हर प्राणी, सृष्टि पर लागू होता है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिससे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं।
तो इस पुस्तक के शुरुआत में ही आपसे मैंने पूरा क्लियर कर लिया, आज के इस सेशन में क्लियर कर लिया, और बीच बीच में हमने बहुत बार आपको कहा है कि आप अपने जीवन के क्षेत्र में चाहते क्या है, पाना क्या चाहते हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वाई और बिकॉज भी बहुत क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। यदि आपने काम पहले ना किया हो तो आज इसी वक्त कर ले, अपनी बनाई सूची और लिस्ट पे नजर डाले और जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष की 10 इच्छाएं, मतलब आपके 10 ड्रीम्स चुन ले जो आपने लिस्ट लिखा ना, उसमें से ये इच्छा आपके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, मतलब अलग अलग एरिया से आप चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल धन, स्वास्थ्य, घर, संबंध, या फिर एक ही क्षेत्र। अगर आपकी किसी चीज में प्रायोरिटी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में ही मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, किसी का सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और पैसे में ही बहुत बड़ा ड्रीम है, किसी का किसी और चीज के बारे में, तो एज अ ऑप्शन आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं शीर्ष की 10 इच्छाएं। अगेन बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए, क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं आने चाहिए, सुना अगर प्रॉपरली तो आप हर इच्छा को चुन सकते हैं जो कि आप बदलना चाहते हो या सचमुच पाना चाहते हो, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि आप इस मैजिकल परिवर्तन, जादुई परिवर्तन को होते हुए देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक आदेश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। आप एक पेन तथा जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। लेकिन मैं कहूंगी कि आपको पेन, पेपर और बुक पे फर्स्ट लिखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, उसमें आपके पांचों इंद्रियां, पांचों सेंस एक साथ काम करेंगी, तो सीधा वो चीज आपके ऑटोमेटिकली माइंड में बहुत अच्छे से जाएगी। तो प्लीज हाथ से ही लिखिएगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो कुछ और यूज कर सकते हो, कंप्यूटर आइए। हाँ जी, थोड़ा फास्ट पढ़िएगा। और वन मोर, एक परमिशन लेना चाहूंगी, आज की क्लास 10 मिनट ज्यादा, 15 मिनट ज्यादा चल सकती है, इज दैट ओके? चैट बॉक्स में डालिए यस, तो मैं खींचती हूँ या थोड़ी फास्ट गाड़ी चलाती हूँ। मुझे परमिशन चाहिए आप सबका। हाँ जी, विवेक जी रीड कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान पे अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुकी हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों की बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूरा करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के लिए सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है कि 3 के नंबर का क्रिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लगातार 3 बार धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखने के पीछे का रीजन यही है क्योंकि ये क्रिएशन का नंबर है, सृजन का नंबर है। और गहराई से धन्यवाद देना यहाँ पे एक फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय फॉर्मूले का ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से इस जादू को एक्टिवेट करने के लिए। इसीलिए हर चीज के लिए आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। हाँ जी। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को अधिक कृतज्ञता से सरोवर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादू शक्ति से सरोवर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? अगर आपके ड्रीम लिस्ट में से कोई भी कंप्लीट हुई तो आपने इमीडिएट वो कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फीलिंग को महसूस किया, ये बहुत जरूरी है। एवरीडे आपके विजुअलाइजेशन में वो चीजें महसूस करना। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? आपको सोचना है कि ओ वाह मुझे ये गाड़ी मिल गई, ओके गाड़ी मिली, सबसे पहले तो मैं जाके मेरे बच्चों को बताऊंगा, उन्हें खींच के लेके आऊंगा, एक एक को गाड़ी में बिठा के फर्स्ट हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे, कूल कॉर्नर की आइसक्रीम खाने जाएंगे, वहां पे बैठ के इतना मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, गॉसिप करेंगे, ये वो सारी फीलिंग्स आपको फील करना है। किसको बताना है ये भी आपको ड्रीम लिस्ट में लिख सको तो लिखिएगा। जब आपकी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले आपने कौन सी चीज की, कौन सा एक्साइटमेंट आपको आया, दौड़ के आपने कौन से दोस्त को बताया? अपने मन में जितने अधिक डिटेलिंग और विस्तार से आप बयान कर सकते हो करें, क्योंकि आपकी वो फ्रीक्वेंसी, तरंगे, भावनाएं ही वो यूनिवर्स तक पहुंचेगी। हाँ जी। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो यदि आप कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार, बहुत अच्छी चीज करना चाहे ना, तो आप एक मैजिक बोर्ड, एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर, मतलब अगर आप कुछ चीज पर्टिकुलर, जैसे ऑडी एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी तस्वीर लगा सकते हैं। उसके साथ आप खुद को भी खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप तस्वीरें काट कर एक बोर्ड पर भी लगा सकते हैं ताकि आपको दिखता रहे। और आप जहाँ पे सोते हो, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, उनको विजिबल जगह पे लगा के रखें ताकि आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा उस पे जाए। उसे किसी ऐसी जगह पे लगा दे जहां पे आप अक्सर उसे देखते रहे।
मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद लिखें। आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं और पूरे परिवार के साथ मिलकर अगर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, और जितने अपने नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली को आप शामिल कर सकते हो, इज दैट पॉसिबल तो करिएगा, नहीं तो अपने परिवार को तो जरूर शामिल कीजिएगा, और स्पेशली बच्चों को, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनका एक्साइटमेंट और उनका रोमांच बहुत ज्यादा होता है, और वो वाई बिकॉज क्या क्यों वैसा नहीं सोचते हमारी तरह लॉजिकल माइंड से। उनको तो एक बार बोला ना कि कल हमको घूमने जाना है, तो वो 10 बार आपको आके पूछेगा मम्मा कब चलना है, कितने बजे चलना है। आपको अगर आप भूल भी गए ना, तो वो आके 25 बार आपको याद दिला रहेगा, ओके मम्मा हमने वो विश लिस्ट लिखा था ना, वो कभी पूरा होगा, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक ये, अभी तक वो। तो वो अलार्म घड़ी के जैसे आपको रिमाइंडर देते रहेंगे। तो बच्चों को तो स्पेशली शामिल कीजिएगा, ताकि उनका एनर्जी और आपका एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ और बहुत ज्यादा मैजिकल बने, क्योंकि वो तो ऑलवेज एक्साइटमेंट में हमेशा ये सोचते ही रहेंगे। तो उस जादुई बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उससे आपके जीवन में पूरे रास्ते एक मैग्नेट की तरह खींच के लाएगी, ऐसे। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्या और कैसे करना है। हाँ जी, आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अनम्यूट, सॉरी। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी इच्छाएं वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू विवेक जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। और आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, हाँ जी, सबको समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन शेयरिंग आप पूछ सकते हो। आप हैंड राइज करके पूछ सकते हो, और अच्छे से समझाया तो आप लोग मुझे थैंक यू भी बोल सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू लता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। तो आप वेट कर रहे थे क्या मेरे बोलने का कि हाँ मैं भी बोलना है? अरे मैं ही थैंक यू की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, थोड़ा बहुत थैंक यू तो मेरे लिए भी बनता है ना। बिल्कुल बनता है मैडम, बिल्कुल बनता है। I'm just joking. Okay. हाँ, my son is also saying thank you to you. Wow, thank you बच्चा। हाँ राजश्री जी, मोना जी आप अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? Just a second. आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं मैडम? हाँ जी, एक मिनट। हाँ, Yeah, now I can. Okay, fine.
जिसको क्वेश्चन पूछना है अपना नाम और प्लीज वो फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है या शेयरिंग है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट राजेश्वरी जी, फिर आशीष जी आप। हाँ राजेश्वरी जी अनम्यूट कीजिए। राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है मैम? यस। हाँ जी आ रहे हैं। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, बहुत मस्त लगा आज का सेशन। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू राजश्री जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ आशीष जी। Okay, ma'am. Thank you for amazing session. I had goosebumps while having this session. So thanks to you. तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। और मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने बोला आफ्टर अप्लाइंग दी एक्शन, आई मीन जो एक्शन की बात पहले की गई है कि आपको सारे अपनी ड्रीम लिस्ट बना के लॉ ऑफ चॉइस ये सब जो आपने बताया, उसके बाद जो अप्लाई एक्शन की जो बात हो रही है, वो पेइंग ग्रैटिट्यूड ये सब जो भी आपने बताया, वो एक्शन है या वो एक्शन कुछ और बात हो रही है? वो मुझे एक्शन क्लैरिफाई करना है कि व्हाट दैट एक्शन इज। एक्शन आशीष, या एक्शंस आशीष रिगार्डिंग होगा ग्रैटिट्यूड, कीपिंग योरसेल्फ इन गुड फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स में रहना, ग्रैटिट्यूड देना, और जो फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कहना, पॉजिटिविटी की तरफ रहना, राइट, विजुअलाइजेशन करना, अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचना, ये सब एक्शंस बहुत जरूरी हैं। हाँ, और ऐसे भी कुछ एक्शंस जो जनरली आपको लेने, वो भी लेने पड़ेंगे। अब आप घर बैठे कहें कि मुझे ऑफिस से रोज का लाख रुपए आता जाए, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको उठ के ऑफिस भी जाना पड़ेगा, ऑफिस में जो रूटीन वर्क है वो भी करना पड़ेगा। लेकिन आप उस दौरान जो भी काम करें, हर एक काम में पॉजिटिविटी आपको जाननी पड़ेगी, पॉजिटिविटी, आपको विजुअलाइजेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अपने आप को अबव द लाइन रखना पड़ेगा, वो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। राइट मैम, थैंक यू। थैंक यू आशीष जी। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मैम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक। ओके, सो आज मुझे पूछना पड़ेगा सबसे, बिकॉज ऑफ आज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पीयू जी, आज का सेशन क्लियर है आपके लिए? अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर है? हाँ क्लियर है, लेकिन एक क्वेश्चन है। ठीक तो है, फिर इतने टाइम क्या हुआ था? नहीं एक्चुअली मैं सोच रही थी। अब सोच लिया? अभी हाँ, से सोच लिया। इन्विटेशन अभी देना मैं पड़ेगा क्वेश्चन कि पूछी। प्लीज क्वेश्चन पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ जी पीयू जी, क्या सोचा आपने? तो द थिंग इज, अभी हम जिसके साथ रहते हैं, जो हमारे बहुत नियर एंड डियर रहता है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है। So, how should we make them understand that you don't get into this one, just come out of it? Because it is affecting me. I mean, it's affecting me and my sisters also. I'm talking about my mom. Yeah, more precisely. So See, I am worried because she's all the time negative. The way we see, actually it's not like that. The way she explains, like we are not even in a situation to show her what her mistake, and she doesn't agree to it. So she's closed like this. With her thinking, it's closed. So how can I, get her out of this? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीयू जी, आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स कही अभी तक, डिड यू नोटिस देयर वर सो मेनी कंप्लेंट्स इनटू इट? Door is closed, she is negative, she cannot see her mistakes, I cannot get her into positivity, she is negative, right? Yeah. So every complaint you made, you've given her the power of one complaint into 10. She's become all the more powerful, right? First and foremost, that has to be stopped. Absolutely stopped, right? Secondly, the law which we are doing, जो हम power ये कर रहे हैं magic sessions, ये है the law of you,
ये आपसे स्टार्ट होता है। आपको खुद पे काम करना है, हम किसी और पे काम नहीं कर सकते, जैसे अभी लिया जी ने थोड़ी देर पहले समझाया, राइट। अब अगर एक तरफ बहुत अंधेरा, सुबह मैसेज में भी ग्रुप में डाला था कि अगर बहुत अंधेरा, अंधेरे की तरफ देखने की बजाय एक दिया जला के उजाला कीजिए, है ना। तो अभी क्या है कि अभी जो है आप उनकी नेगेटिविटी को फोकस दे रही हैं बहुत ज्यादा, आप और आपकी सिस्टर, तो वो बढ़ती जा रही है। पहले तो वो फोकस उधर से शिफ्ट करके अपने ऊपर लेकर आइए कि आप उजाले को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप क्या कर रही हैं, मैं तो उजाला कर रही हूँ, उधर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मैं तो उजाला कर रही हूँ, तो आप क्या कर रही हैं, आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं अपने साथ ही, ठीक है। टग ऑफ वॉर में एक तरफ से रस्सी कोई खींचेगा, एक तरफ से और खींचेगा, और जीतेगा कौन, जो ज्यादा बलवान हो जाएगा वो रस्सी खींच लेगा। तो उस रस्सी को वहां छोड़िए, टग ऑफ वॉर से बाहर निकलिए। एक खींचातानी की रस्सी नहीं चाहिए हमें। अपने पे फोकस कीजिए, अपने को पॉजिटिव कीजिए, और उनके लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड लिखिए ना। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट फॉर माय मॉम टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट मेक्स द हाउस एटमॉस्फेयर सो गुड, राइट। ऐसे करके उनकी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढिए, उनके बारे में लिखिए और लिखिए, और उसके बाद उनका ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद जो आप चाहती हैं उसके लिए थैंकफुलनेस लिखिए। जैसे भी ड्रीम लिस्ट में आया कि पहले थैंक यू आया आज, कि मेरा ये काम हो गया है, हो जाएगा नहीं, हो गया है। तो आप भी लिख सकती हैं कि आपका घर का जो एटमॉस्फेयर है कितना पॉजिटिव हो गया, उसके लिए आप थैंक्स कर सकती हैं। अब घर के एटमॉस्फेयर के लिए आप थैंक यू करेंगे तो मॉम भी तो घर का ही पार्ट है, तो उनको भी तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ना, पूरे घर को पॉजिटिव होने के लिए। एग्जैक्टली, है ना। तो आपका बस अभी ये प्रॉब्लम है कि आप दोनों का फोकस उनकी नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वो उनको आप उस राक्षस को बलवान करती जा रही है, खाना खिला खिला के, वो भी एक्स्ट्रा कुजीन्स खिला खिला के। लो स्वीडिश भी खाओ, लो तरह तरह के खाने भी खाओ आप। थोड़ी देर उस राक्षस को भूखा मारिए, इधर वाले जो पॉजिटिव लोग हैं उनको ज्यादा खाना खिलाइए, तो देखिए कौन बलवान होता है ज्यादा। द थिंग इज ना, मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि ये जो भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, और भी पीसफुल रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्स ने क्या, वो तो यूनिवर्स नहीं तो सुनता नहीं, तो आपकी ड्रीम लिस्ट में क्या आ गया, ऐसा ही होना चाहिए। यूनिवर्स को नहीं समझ में नहीं आता। अगर आपने ड्रीम लिस्ट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यूनिवर्स को समझ में आता है मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, राइट। तभी तभी आप आज लिया जी ने कहा कि आज का चैप्टर ध्यान से सुनिएगा कि कैसे लिखना है। तो पहले तो ड्रीम लिस्ट की और ग्रेटिट्यूड की करेक्शन कीजिए। जहां जहां वर्ड आपने नहीं लगाया वो चीज तो होके ही रहेगी, क्योंकि आपने उसको पावर दे दी। So that is, बाकी सब तो it's fine, but ये वाला जो हुआ था ना, like this was what stuck हो रहा था, and from so many days वो वाला एक हो रहा था, but everything is fine. So today I felt too bad when I was talking to my mom also, and it was such a like I was so helpless कि मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, like I just left it on the situation, and I'm just going on, just wishing good for her, and that is what आपको बोलना भी नहीं है, आपको ज्यादा ताकत लिखने में डाल देनी है। आप ज्यादा ताकत लिखने में डाल दो ना, वो जो बोलना चाहते हो उसको पहले लिखने में ताकत डाल दो। एक चीज को शक्तिशाली कर दो, तो एक बलवान हो जाएगी, दूसरी अपने आप उसके साथ सामने छोटी हो जाएगी, है ना। और जितने आपने आज कंप्लेंट्स करी, 5 तो मेरे सामने ही कर दी, तो 50 ग्रेटिट्यूड तो उसी के हो गए हैं। इसको वो भी पहले जैसी नॉर्मल लाने के लिए, एक्स्ट्रा लाने के लिए नहीं, पहले जैसी नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। उसके बाद आप जो ग्रेटिट्यूड डालेंगे उससे जो है आपका सिचुएशन बदलना शुरू होगा। सो आगे से कोई भी कंप्लेंट करने से पहले, जो लोग भी हैं कॉल पे, एक छोटी सी भी कंप्लेंट करने से पहले एक बारी सोच लीजिएगा कि उसका नतीजा क्या है, कि उसको उसी लेवल पे लाने के लिए पहले तो 10 कंप्लेंट्स आप करोगे, 10 ग्रेटिट्यूड लिखोगे एक कंप्लेंट की बजाय। उसके बाद नए ग्रेटिट्यूड शुरू करोगे तो उसका लेवल धीरे धीरे ऊपर होना शुरू होगा। तो आप सोच लीजिएगा कि आप लोगों को क्या करना है। Thank you. Thank you, Pihu. Yeah, thank you so much.
थैंक यू। और अभी हम एक फोटो शेयर कर रहे हैं जो रेड पेन से आपको कैसे लिखना है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है तो और लेंगे। तो सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिनको अगर जाना है तो जा सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट और लेंगे। दिलीप जी आप हो ना कॉल पे? दिलीप आप शेयर कर रहे हो स्क्रीन? जस्ट अ सेकंड, वो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। फोटो बता रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से आपको मेन येलो पेपर में एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल पे रेड से एरोस करने हैं, एरोस के अंदर आपको फोटो और आपका विश और ड्रीम लिखना है ताकि वो बहुत ज्यादा विजिबल हो। और एग्जाम्पल हम अभी आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। तब तक मोना जी आप क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी, आई थिंक आशीष जी वांटेड टू आस्क समथिंग। आशीष जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन इसी से जो भी पीहू ने पूछा है ना, मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए कि जब हम किसी कोच से बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ तो मुझे उसका इमोशन और उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन बतानी पड़ेगी ना आपको। अगर आप मुझे उस चीज के लिए मुझे एकदम अलर्ट करा दोगे कि भैया आप जो है अभी कंप्लेंट कर रहे हो, तो अगर जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं आपको ठीक से बताऊंगा ही नहीं, और मैं क्या पेन फील कर रहा हूँ कि भाई मेरी मदर मुझे ऐसे बोलती हैं यार, वो बड़ी नेगेटिव है क्योंकि वो उनके डोर क्लोज है, अब मैं क्या करूं। अगर मैं ये सबको हटा दूंगा तो मैं अपनी बात रखूंगा कैसे आपके सामने, और आप उसका एक्चुअल में मेरे को सोल्यूशन कैसे दोगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जब मैं अपना क्वेश्चन रख रहा हूँ तो मुझे उस चीज को तो अलाउ करो कि मैं रियल ग्रेविटी तो बता पाऊँ आपको कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। वो बंदे का दरवाजा ही बंद है, वो एंट्री नहीं करने देती मुझे। सो दिस इज माई क्लैरिटी कि इसको मैं ठीक से कैसे प्रेजेंट करूं कि मेरी बात भी डिलीवर हो जाए आप तक, और इसकी जो इंटेंसिटी है नेगेटिविटी की वो भी सब्लाइम हो जाए। सो प्लीज कमेंट ऑन दैट। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन पीहू जी ने जब अपनी सारी स्टेटमेंट शेयर कर ली कि हर डोर्स आर क्लोज, एवरीथिंग इज क्लोज, उसके बाद मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि आपने अभी बहुत सारी कंप्लेंट्स करी। मोना जी आप आवाज बंद कर दो। नो मैम, नॉट ऑडिबल मोना जी। Still not. Try again, ma'am. Not able to unmute. Just a second. हाँ, now it's okay. अब आवाज आ रही है आशीष जी? Yes, ma'am. हाँ, देखिए मैंने कहा जब पीयू जी ने सारा शेयर किया कि काफी नेगेटिविटी है, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही, उन्होंने जो दरवाजे बंद कर लिए, दैट इज द पॉइंट। आई जस्ट पॉइंटेड इट आउट, और पॉइंट भी इसीलिए किया क्योंकि आज पीयू जी को 13 दिन से ज्यादा इस जर्नी में हो चुके हैं, राइट? ये गाइडलाइंस उनको पहले मिल चुकी थी कि आप जितना नेगेटिव बोलेंगे उतना नेगेटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन कि उसको इन बात पे टोका गया। बाकी जो आप कह रहे हैं कि किसी से भी आप जब बात करेंगे, ऑफ कोर्स आपको अपने इमोशंस बताने होंगे पहली बारी में, लेकिन जब आपको पता लग जाए कि मैं एक बात Sound is gone. नुकसान ही पा रही। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? जी Yes, ma'am. हाँ जी, तो अगर आपको जैसे एक बारी बात करके थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इस तरह से एक्सप्रेस करके मैं उस चीज में नुकसान पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो उसको खुद ही आप अवॉइड करेंगे बात करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों की ना दर्द सहते सहते और लोगों की जैसे प्रैक्टिस हो गई है हमें अपना दर्द बयान करते करते, कि हम उसको इतनी एनर्जी दे के बार बार उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, बार बार उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसमें हमें मजा आ रहा है, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारी बात सुन रही है, अंदर से सुकून मिल रहा है। लेकिन जो सामने वाला आपको सुन पा रहा है ना, वो देख पा रहा है कि ये इसको अगर मैं टेम्पररी सुकून अभी दे दूंगा या दे दूंगी तो इसका मेजर नुकसान है उसमें। ठीक है, आज अगर सपोज आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, आप मुझे कहते हैं कि ओके मेरी सिस्टर के साथ मेरा रिलेशनशिप बड़ा खराब है, आप एक बार ये बात कह चुके हैं, अब आप उसको कहेंगे यार वो इतनी खराब है ना, इतना मुझे तंग करती है ना। आशीष जी आप मुझे एक बार एक्सप्लेन कर चुके थे आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है यार। नहीं, पर आपको पता नहीं है, वो मैं जहां बैठता हूँ वहीं आके ना लाउड म्यूजिक लगा देती मुझे परेशान करने के लिए।
आशीष जी, आप मुझे बता चुके हैं कि आपका रिलेशनशिप खराब है। अरे आपको मालूम नहीं है मेरी मम्मी के साथ कितनी चुगलियां वो मेरी करती है और कैसे मम्मी को भड़काती है। आशीष जी, आप मुझसे बता चुके हैं आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, राइट? अगर मैं आप ये सारी बातें आपकी सुनती रहूंगी तो आप रियलाइज कीजिए कि आपने कितनी जबरदस्त एनर्जी दी, नेगेटिव वर्ड्स दिए, कितना अंदर से एक आक्रोश का, आपने आक्रोश का एक एक्सप्रेशन दिया। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को, जैसे लता जी ने शेयर किया, वाइब्रेशन को, एनर्जी को, उसी भाषा को समझता है। इससे पहले सामने वाला कोच या मेरे जैसा कोई आप इंसान आपको कुछ समझा सके, यूनिवर्स ने आपकी भाषा पकड़ ली। उसकी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा तेज है, उसने वो सब कैच कर लिया। रिजल्ट आपको यूनिवर्स उसी हिसाब से दे देगा, उसके बाद मैं जितना मर्जी आपको समझा लूं। इसीलिए हम लोग आपको जो है टोक देते हैं एक पॉइंट के बाद आगे कि बस हमें समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं, मालूम है दिल भरा हुआ है, अंदर बहुत कुछ कहने को है, बट उसमें आप लोगों का ही नुकसान है। लेकिन हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो चुकी है क्योंकि व्हाट वी प्रैक्टिस एट, यू नो, वी बिकम एक्सपर्ट्स इनटू इट। तो हम निंदा में चुगली में तो इतना ही निंदा चुगली कर चुके हैं कि हम तो सारे एक से एक बढ़कर प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे। अब अवेयरनेस आ गई है, ऑल वी ट्राइंग टू डू इज कि उसको एक पॉइंट के बाद हम स्टॉप कर दें ताकि ये प्रैक्टिस भी खत्म हो और एक नई हैबिट जनरेट हो जाए, एक नई आदत आप लोगों में, हम लोगों में एक नई आदत डल जाए। ओके, ब्यूटीफुल मोना जी, सुपर्ब एक्सप्लेन। थैंक यू। थैंक यू। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज दिलीप जी। मोना जी, आप बहुत ब्यूटीफुली आंसर देते हो। ऑल थैंक्स टू आवर कोचेस जिनसे इतना कुछ सीखता है हम लोग। यस, सो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है ना, तो आपको येलो पेपर पे जो प्रायोरिटीज की 3 इच्छाएं हैं उसको इस तरीके से लिखना है। साथ में अगर आप फोटो भी एड ऑन कर सको तो करिए और अपने हाथ से भी ये बना सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल आपको शेयर किया जा रहा है कि ऐसे करना है। सुनाई दे रहा है ना? ऑडिबल? हाँ जी, you're audible। तो इस तरह के ओवल सर्कल में एरोज बनाने का मीनिंग ये रहता है कि है ना, यूनिवर्स का शेप भी ओवल रहता है। हर उस चीज का, ब्रह्मांड की उस शक्ति का शेप ओवल रहता है और ये एरोज हमको पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस पे फोकस कीजिए। रेड और येलो कलर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है तो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम वो चीज अट्रैक्ट और फिक्स हो जाती है। उसके बाद हमको हमारा विश लिखना है, हमारी ड्रीम लिखनी है कि वाओ, ये मेरी BMW कार में मैं मेरी फैमिली के साथ, मतलब मिलने से पहले भी और मिलने के बाद दोनों भी इसमें मेंशन किए हुए हैं, BMW कार लिखा हुआ है। तिरुपति भगवान, मतलब मिलने के बाद आप किसके पास जाके सबसे पहले रिएक्शन, शुक्रिया अदा करोगे, वो सब कुछ मेंशन किया गया है। तिरुपति भगवान को शुक्राना करने आया हूँ, वाओ हम कितना मजा कर रहे हैं, बच्चे कितने खुश हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो इस तरह के पेपर्स आपकी प्रायोरिटीज के साथ, जो भी ड्रीम है उसके पिक्चर के साथ आप अपने बेडरूम में, अपने किचन में विजिबल तरीके से लगा सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये बुक में नहीं लिखा है लेकिन बुक से बाहर का ये एक फॉर्मूला है जो हमने अप्लाई किया और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो इस तरीके से, हाँ जी, वाओ, निधि जी ने तो कर भी दिया है, अमेजिंग निधि जी, थैंक यू। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप ऐसे 10 पेपर भी बना के कर सकते हो, या अगर प्रायोरिटीज में किसी एक चीज पे, 2 या 3 चीजों पे फोकस करना है तो वैसे ड्रीम आप बना सकते हो। लिस्ट तो लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रायोरिटीज चूज कर लीजिएगा कि इस क्लास में, मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या चाहिए। Am I clear? क्लियर? ओके, हाँ जी।
सो हमारे सेशन का टाइम हो गया है और जागृति जी आपका कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो अभी कार वाला एग्जांपल दिया, तो उसमें हम लोग को एग्जैक्टली वही कार का फोटो लेना होगा, लाइक जो कार हम लोग को चाहिए, और हम लोग को लिखना होगा कि वाओ मैं अपनी फैमिली के साथ ये कार में इस जगह जा रही हूँ, इतना ही लिखना होगा, राइट? हाँ, आप उसमें डिटेलिंग और भी कर सकते हो। गाड़ी ये मेरी चॉइस की है, आपकी चॉइस की कार कौन सी है उसका पिक्चर आपको लेना है। और सिर्फ कार नहीं, आपकी जो भी ड्रीम है उसका पिक्चर आपको लेना है। कार तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो मैम इसमें कितना फोटोज ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कार? कार तो मेरे को एक लेना ही है, उसके अलावा एक पिक्चर में एक फोटो, एक लिस्ट, एक ड्रीम लिखना है, एक येलो पेपर पे। ओके, ऐसे 3 येलो पेपर एक ही ड्रीम के आप बना के 3 अलग अलग जगह आप रख सकते हो। जैसे सपोज मेरे को कार लेने, तो मेरे को 3 जगह कार का फोटो लगाना होगा। हाँ जी, सॉरी। इट्स ओके मैम। आप मैं पूछ रही थी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को कार लेना है मर्सिडीज, तो मेरे को मर्सिडीज का फोटो 3 जगह लगाना होगा येलो पेपर के ऊपर पेस्ट करके। हाँ जी, तो वो कहाँ पे लगाना होगा? आप ये रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, अभी मैंने 3 से 4 बार मेंशन किया, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, थैंक यू डियर। तो मैम टोटल कितना चीज ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कार, की कोई लिमिट नहीं है? 10 फोटो ड्रीम लिखा है ना, 10 ड्रीम में से आप प्रायोरिटीज चेक कीजिएगा। और आप एक बार प्लीज जागृति जी रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा वंस अगेन, आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। थैंक यू। सभी हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। सॉरी मैम, आज मैं लेट ज्वाइन की थी, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके, थैंक यू। सभी ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी लोगों का, इस मैजिकल फैमिली का, इस अमेजिंग जर्नी का, और उस यूनिवर्स का, जिस भी भगवान को, जिस भी चीज को, जिस भी रिलीजन को, धर्म को आप मानते हो, उन सभी धर्म का सबका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आज के इस वंडरफुल डे, इस वंडरफुल सेशन का विदाउट एनी ब्रेकडाउन। So thank you, thank you, thank you. Good night all of you. हाँ, और आपके SMS का मैं वेट करूंगी कि कौन कौन अप्रिशिएट करता है। ओके, so thank you. Good night.